नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आज की कुछ अहम खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम की तरफ से आज बर्नपुर के प्रांतिक ओल्ड एज होम में आधार कार्ड बनाने का शिविर लगाया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंदू विशेष रूप से उपस्थित थे। आइए एक नजर डालते हैं। তোমার কালার পিল হচ্ছে এখান থেকে তোমার নিলো কিন্তু আমি এই ইয়ার থেকে নিলো কোনটা বলো যে তোমার হেভি আসছে বলছিল ওটা ভালো হবে না কালকে সব ঠিক হয়ে গেছে কালার প্রিন্টটা খুব সুন্দর বার হচ্ছে কালারটা ঠিক বার হচ্ছে মিস্ত্রিটা চেঞ্জ করলে বলে ওই মিস্ত্রি ফুল মাছ দেড় দু মাস আগে আমি খবর পেয়েছিলাম এবং দায়িত্ব নিয়ে এখানে প্রথম এসেছিলাম। এসে যখন আমি আমার যারা আমাদের কর্পোরেশনের পুরসভার যারা রয়েছেন অফিসার তাদেরকে নিয়ে যখন ফর্ম ফিল আপ করাতে যাই তখন দেখি যে বেশিরভাগেরই এখানে আধার কার্ড হয়নি এবং আধার কার্ড না হলে এখন সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাওয়াটাও মুশকিলের। তো তখন আমি চিঠি লিখি, আমাদের পুরসভার যিনি রয়েছেন চেয়ারপারসন অমরনাথ চ্যাটার্জি পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আমাদের ডিএম স্যারকে আমি চিঠি লিখি, তার কপি দিয়েছিলাম তমজিৎ চক্রবর্তী স্যারকে এবং নিতিন সিংহানি স্যারকে, এবং ওনারা লেখেন পোস্ট অফিসে। এবং আমার খুব ভালো লাগছে আজকে যে পোস্ট অফিস থেকে এখানে এসে এনারা করছেন, সেজন্য ওনাদেরও ধন্যবাদ জানাই। প্রথমে ওরা পোস্ট অফিসে করতে চেয়েছিলেন, তারপর আমি বললাম যে চিঠির বয়ানে লেখা ছিল যে এখানে এসে করতে হবে, কারণ এরা কেউ চলতে পারেন না। এবং এটা হয়ে যাওয়া মানে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তার কারণ হচ্ছে এরপরে আমরা আরামসে মানে যতগুলো সরকারি প্রকল্প রয়েছে সেগুলোকে সমস্ত কিছু দিতে পারবো। আজকে আধার কার্ড হলো আমাদের এখানে। কি আপনার ছিল না? না, আধার কার্ড ছিল না, নতুন করে করলাম। আগে করেছিলাম মানে কার্ডটা পাইনি। কি সমস্যায় পড়ছিলেন? আধার কার্ড সমস্যা তো এখন আধার কার্ড ছাড়া কিছুই হয় না। আগে রেশন কার্ডে কাজ হতো, এখন তো সেই সকল কাজ হয় না, ভোটার কার্ডেও কাজ হয় না, আধার কার্ডটাই মাস্ট। ওই জন্যই আধার কার্ডটা করলাম। আপনি একটা কথা বলছিলেন আধার কার্ড, হ্যাঁ, আধার কার্ড যেমন জীবদ্দশায় লাগে মৃত্যুর পরও লাগে বলছিলেন, সেটাই? মৃত্যুর পরও লাগে, নাহলে তো পোড়াতে পারবে না, তখন মুশকিল হয়ে যাবে। ছেলেরা বাইরে থাকলে যারা পোড়াবে তারা বিপদে পড়বে। ওই চিন্তা করেই বেশিরভাগ আর কি আধার কার্ডের জন্য চেষ্টা করা। এই যে এখানে আপনি বসে আছেন বৃদ্ধাশ্রমে, আর সরকার থেকে নিজেরা এসেছে উদ্যোগ, কেমন লাগছে বিষয়টা? ভালোই লাগছে। এই যে বৃদ্ধাশ্রমের জন্যই তো ফ্যাসিলিটিটা পেলাম, নাহলে তো পেতাম না। আমরা সাধারণ নাগরিক, আমাদের কি আলাদাভাবে করে যেত, কেউই দিত না। চন্দ্রশেখরবাবু উনি আমাদের জন্য করেছেন, ক্যাম্প করেছেন, উনি আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এই তো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হবে, বিধবা ভাতা হবে, শুধু এই আধার কার্ডের উপরে ডিপেন্ড করে। ওই জন্যই আধার কার্ডটা করলাম। আপনার নামটা বলুন। অনিতা সুর। আপনার কি আধার কার্ড ছিল না? আমার আধার কার্ড ছিল, হয়েছে, কিন্তু আমার জন্যে তো শুধু নয়, আমার যাদের সঙ্গে আছি আমাদের সব বন্ধুর মতো তাদেরও তো লাগবে। সেই জন্যেই উনি যে করছেন বা আমাদের আগেও এসেছিলেন, সেই জন্য আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে, বা ওনার জন্যেই আমাদের সবাইকার হচ্ছে। আমার একলার নিয়ে তো নয়, আমার বন্ধুরা সবাই বন্ধুই বলবো। কি হলো এখানে, কি হচ্ছে? আজকে তো হচ্ছে আধার কার্ড হয়েছে, আর কি হয়েছে? আধার কার্ডটা না থাকায় কি অসুবিধা হচ্ছিল? বাবা, অসুবিধা তো বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছি না, তারপরে আরও সরকারি আরও সব সুবিধে আছে, হয়েছে আজকাল। আমাদের মমতা যেসব আমাদের জন্যে চিন্তা করে এত বড় কাজটা করছেন, তার জন্যে যে মমতাদিকেও ধন্যবাদ দিই। আর আমাদের শাখা হয়ে আসানসোল পুরসভা, আসানসোল পুরসভায়
চন্দ্রশেখর বাবু যথেষ্ট আমাদের জন্য করছেন। উনি কিছুদিন আসতে পারেননি প্রথম আসার পর, কিন্তু আমরা আরেকজনরাও এসেছিলেন, তাদের বলতে উনি বললেন যে না, উনি খুবই কাজ করছেন, তবে আপনাদের একলা তো নয়, 5 জায়গায় ঘুরে ঘুরে করতে হচ্ছে, তাদেরও করছে, আপনারা আশা ছাড়বেন না, নিশ্চয়ই উনি আসবেন, হাতে যে কালে নিয়েছেন নিশ্চয়ই উনি করবেন। খুশি, আপনারা খুশি? খুশি বলে খুব খুশি। এই বুড়ো বয়সে যাদের পেনশন নেই বাবা, যাদের পেনশন আছে তাদের কথা বাদ দাও, কিন্তু যাদের পেনশন নেই তাদের এটা ভীষণ অবলম্বন। কারণ ছেলেপুলেরা সংসার চালিয়ে কতটুকু আমাদের হাতে দিতে পারে, এখানেও তো আমাদের খরচ দিতে হয়, আমরা তো বিনা পয়সায় থাকি না। আর কি বলবো বলো। আপনার নামটা? আমার নাম বন্দনা বসু, বাড়ি। चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। आज सेंट्रल बैंक के शीर्ष पद अधिकारियों के साथ आसनसोल शिल्पांचल के प्रमुख उद्योगपतियों की बैठक हुई। यहां उद्योगपतियों ने अपने व्यवसाय में आने वाली प्रमुख समस्याओं को लेकर सेंट्रल बैंक के अधिकारियों से चर्चा की। आज आसनसोल दुर्गापुर के तमाम प्रमुख उद्योगपतियों के साथ सेंट्रल बैंक के शीर्ष अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मौके पर सचिन रॉय सहित तमाम प्रमुख उद्योगपति मौजूद थे। बैठक के दौरान इन सभी उद्योगपतियों ने सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के सामने अपनी कई समस्याएं रखी, जिनमें सबसे प्रमुख समस्या थी लोन की समस्या। सचिन रॉय ने कहा कि उद्योगपतियों को बैंक से मिलने वाले लोन को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने लोन से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाने की अपील की। और जेल सर, हमारे चौधरी जी सब कुछ बोल दिया, इंडस्ट्री का लोन के बारे में मेरी टीम सब कुछ बोल दिया। हम ओनली रियल एस्टेट के बारे में कुछ बोलने चाहते हैं। रियल एस्टेट आल्सो इज अ बिग इंडस्ट्री। रियल एस्टेट लोन को अगर सिंप्लीफाई जितना करें, असल में बिजनेस इतना ही है। थर्ड, रियल एस्टेट थोड़ा सिंप्लीफाई करने से होगा, जैसा HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। और अभी वेस्ट बंगाल में जो कल्चर चल रहा है दुआरी सरकार, दुआरी देशन, अभी देखते हैं दुआरी बैंक, बहुत अच्छा लगा बैंक आ गया हम लोग का इतना बिजनेस बढ़ाने के लिए। थैंक यू और होल टीम। तो हम चाहेंगे रियल एस्टेट को पूरा प्रायोरिटी देके उसका प्रोजेक्ट लोन या जो लोन उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इंटरेस्ट में कुछ जो बैंक देता है उसको अगर थोड़ा कुछ रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को रियल एस्टेट में जो है जो फ्रेंड वो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। थैंक यू वेरी मच। बैंक ने अपना लोन बुक की ग्रोथ के लिए एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम चालू किया है और उस संदर्भ में हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से सारे जनरल मैनेजर्स अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। मुझे दुर्गापुर, बांकुड़ा और के साथ में 4 और रीजन्स का चार्ज दिया गया है जो कि कलकत्ता जोन के अंतर्गत है। इसी संदर्भ में मैं आज दुर्गापुर में उपस्थित हुआ हूँ। आसनसोल चूँकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो बैंक को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे हम लोग अपना क्रेडिट का पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़ा सकते हैं, हम कुछ प्रतिष्ठित ग्राहकों को हमारे साथ में जोड़ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हमने यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित हमारे ग्राहक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ में एक मीट रखा है जिसमें आइडियाज़ का आदान प्रदान हो सके, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बैंक और कर सकता है जिससे वो हमारे साथ में जुड़ सके। अभी एक्चुअली ये हुआ कि बैंक ने अपनी तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं वो हमने कुछ बताया है। हम लोग सारे हमारे जो सम्मानीय ग्राहक हैं उनसे उनके सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बैंक कर सकता है, क्या बैंक के प्रोसेसेस में चेंज चाहिए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव नोटेड डाउन लॉट ऑफ द सजेशंस विच आर वेरी वेरी गुड। और मैं जब हेड ऑफिस जाऊंगा तो इन सजेशंस के ऊपर हम लोग बैठ के विचार करेंगे एंड देन विल कम आउट विद द चेंजेस इन आवर पॉलिसीज सो दैट इन इंडस्ट्रियलिस्ट को हम किसी तरीके से हमारे साथ में जोड़ सके। बोल रहे सर, आप लोग आए हैं ये सेमिनार में, इस सेमिनार में आने के बाद बैंक की तरफ से क्या क्या सुविधा देने की बात की है और आप लोग क्या क्या अपना समस्या बताएं।
मैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी मंगलपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट से हूँ एवं आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ एक बिजनेस रिलेशनशिप का सेमिनार आयोजित किया है। इसमें इस अंचल के इंडस्ट्री लोग भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं, उपस्थित है। इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा। और जहाँ तक ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बात है, मैं तो इससे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था, अभी फिर जुड़ गया हूँ। अभी गवर्नमेंट की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी जी की मुद्रा लोन है, एग्री लोन है, चाहे किसी भी प्रकार का लोन है, ये बैंक अपने कस्टमरों को, ये आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं उनको ये बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से सारा लोन देती है। वो 1-1.5 महीने पहले मैंने दुर्गापुर में इनकी एक मीटिंग अटेंड की थी। उसमें इन लोगों ने 20 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था। काफ़ी संख्या में वहाँ महिलाएं उपस्थित थी, 200 महिलाएं उपस्थित थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जितनी भी प्राइवेट बैंक है, ये लोग कोई मुद्रा लोन वगैरह नहीं देती है। ये लोग गवर्नमेंट स्कीम का जो इतना भी लोन है, ये लोग 1-2 स्कीम में देते हैं, बाद बाकी नहीं देते हैं। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखा है, ये लोग जितने भी प्रकार के लोन है, स्टूडेंट लोन है, एग्री लोन है, जैसे मैंने आपको बताया, और भी मुद्रा लोन है, या जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट का लोन है, ये बैंक चारों तरफ मीटिंग करके देती है। तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री की भी 2-4 प्रॉब्लम रखी है जनरल मैनेजर के सामने। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसको लोन का जो सिस्टम है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मुझको आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस एरिया में एक एग्रेसिव बैंक बन जाएगी। जिनको जहाँ लोन नहीं मिलता है, ये बैंक उसको जितनी जल्दी हो सकेगी लोन दे सकेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना। आज आसनसोल में मनाया गया बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्मदिन। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्मदिन के अवसर पर आसनसोल के गिरजा मोड़ में बने पोटाला मार्केट में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई, जहां आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी शामिल हुए। आसनसोल के गिरजा मोड़ स्थित पोटाला मार्केट में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यहां बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सभी से गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलने की अपील की। यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मंच पे बैठे हुए हैं हम लोगों को हिमाचल प्रदेश से आया धर्मशाला से डॉक्टर साहबा, पोटाला मार्केट का हर सदस्यों, हर मेरा बहन यहाँ पर सब मौजूद हुए हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हम लोगों को स्टाफ लोग हैं, जिसका वजह से आसनसोल साफा सुथरा रहता है, जिसका वजह से हम लोग शांति में सबको शान से कहता हूँ, मेरा आसनसोल एक साफा सुथरा सुंदर शहर है। आज पोटाला मार्केट का तरफ से जो प्रोग्राम इन लोगों को किया गया है, मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों को। हमारा नेत्री ममता बनर्जी हर टाइम कहता है कि आदमी को साथ लेके चलिए, आदमी को बगल में खड़ा होने का कोशिश कीजिए। ये जो एक टोकन उन लोगों को लिए दिया जा रहा है, उन लोगों को ये मदद में लगेगा। और ये मदद में लगने के लिए जो हम लोगों को पोटाला मार्केट का हम लोगों को जिन्होंने आए हैं, हम लोगों को मेहमान का रूप से यहाँ पर हम लोगों को सेवा करने के लिए, यहाँ पर हम लोगों को बगल में खड़ा होने के लिए उन लोगों ने जो बात आज उठाई, ये बहुत बड़ा बात है कि कभी उन लोगों को तकलीफ आसनसोल का वासी लोग पहुँचाने नहीं दिया। इसलिए मैं भी बहुत आसनसोल का चेयरमैन होने का नाते बहुत आभारी हूँ। आने वाला दिन में ऐसे भाईचारा रहेगा, तभी सुंदर आसनसोल तैयार होगा। जो ब्रदरहुड आसनसोल इन्होंने कहा है, सुंदर आसनसोल के लिए आज हम लोगों को इंडिया में, सारा इंडिया में आसनसोल का नाम है। तो हम लोग चाहता हूँ कि आने वाला दिन में दलाई लामा का जो लड़ाई और मानव अधिकार दिवस में जिस दिन उन्होंने ये लड़ाई शुरू किया था चीन का खिलाफ, तिब्बत का हक मांगने के लिए, तिब्बत का वासियों को रहने के लिए जो जगह था, उसमें चीन का जो आदत है
वो आदत को इन्होंने सुधारने के लिए हर आदमी को लेके एक लड़ाई जारी किया था कि मेरा सीमाना मेरा वापस दे दीजिए, मेरा सीमाना में मेरा ही आदमी रहेगा। इसलिए आज तक ये लड़ाई को सम्मान जनाते हुए हम लोगों को नोबेल कमेटी इन्होंने इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया है। और उसी दिन के लिए आज मानवाधिकार दिवस में हम लोग को दिन पालन किया जाता है। ये बहुत एक सुंदर दिन है। ये सुंदर दिन में हम लोगों को बगल में खड़ा है। मैं ये वादा टिबेटन मेडिकल एस्ट्रो बेस्ड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर श्रीमती तेंजिल हांजे जी, हमारे पूर्व कमेटी का मेंबर और एएमसी के कर्मचारियों, मीडिया वालों और मेरे साथियों को तहे दिल से नमन करता हूं। और एएमसी के मेयर श्री अमरनाथ चटर्जी को मैं और पोतला मार्केट की तरफ से अपने कीमती समय निकलकर हमारा बीच पधारने के लिए शुक्रगुजार और धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज 10 दिसंबर 1989 को हमारे तिब्बत की बौद्ध धर्म गुरु परम पूज्य दलाई लामा जी को विश्व के सबसे महान नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आज हम सब की तरफ से परम पूज्य दलाई लामा जी को शुभकामनाएं के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के 25वां वर्षगांठ में ढेर सारे बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पे हम पोतले मार्केट की तरफ से एएमसी के कर्मचारियों जो हमारे शहर सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल को हमेशा साफ रखने के लिए आगे बढ़ाया है, उनके लिए एक छोटा सा ड्राई रेशन बांटने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी को सन 1989 को क्यों ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा पूरा विश्व में शांति का संदेश देते रहा है। और हमारा देश जो तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, उनके खिलाफ मुगित रखने के लिए हमारा गुरुजी लगातार हिंसा के इस्तेमाल का विरोध करते रहा है और चीन के सम्मान देने के लिए कहते रहा है। और हमारा परम पूज्य दलाई लामा जी ये कहते रहा है कि हम सब इंसान एक दूसरे के लिए मदद और एक दूसरे के सम्मान और एक दया के रूप में आगे बढ़ने के लिए संदेश देते रहा है। और हमारा परम पूज्य दलाई लामा जी पूरा धार्मिक विश्व में पूरा धार्मिक को एकता और एक दूसरे के लिए सम्मान के लिए संदेश देते रहा है। इसीलिए हमारे गुरु जी को 1989 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आज के ये दिन विश्व में 73वां यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार दिवस भी माना जाता है। सभी को पता है कि ये संस्था की ओर से चाहे राजनीतिक या देश भर में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए होते हैं, मगर हमारे देश जो तिब्बत चीन के कब्जे में 72 साल हुआ है, चीन ने तिब्बत के अंदर हिंसा, आतंक, भेदभाव और अन्य अत्याचार करते रहा है। 1949 के बाद तिब्बत में लाखों तिब्बतियों को चीन ने मारा गया है। चीन द्वारा तिब्बत में मानव अधिकार का नजरअंदाज करके आज तक 160 से ज्यादा लोगों ने तिब्बत की आज़ादी और चीन के विरोध के लिए अपने आप को जलाकर राख कर दिया है। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय समाज और विश्व के सभी लोगों को चीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर कार्रवाई करने के मांग करता हूँ। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। और मैं आपको बता दूं कि आज 10 दिसंबर यानी कि मानव अधिकार दिवस, यानी कि आज के दिन लोगों के ज़रिए प्राण लिया जाता है कि आज लोगों को एक समान मिले और ये दुनिया लोगों के लिए रहने की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहें, एक समान होकर रहें। ये थी कुछ अहम खबरें।
आसनसोल टाइम्स के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको शिल्पांचल की हर तरह की खबरें मिलते रहे। जाने से पहले हमारे वेबसाइट पर भी नज़र रखते जाएं। हमारा वेबसाइट है www.asansoltimes.co.in। धन्यवाद।